السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ ہم نے لیکچر کامرس کا ایک سیریز شروع کیے، آج ہم اس میں پارٹ 2 کہ وہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو پچھلے پیپروں میں آئے تھے ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیکچر کامرس BPS 17 فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ٹوٹل پیپر 3 پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک حصہ انگلش کا ہوتا ہے جو 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کامرس کا ہوتا ہے 50% مارکس اس کے ہوتے ہیں، اور تیسرا پرسن ایجوکیشن کا ہوتا ہے، اس کے 30 نمبر ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 100 نمبر کا پیپر ہو گیا، اس میں کوئی نگیٹیو مارکنگ نہیں ہوتی۔ تو آج ہم کامرس جو کہ 50% پر مشتمل ہوتا ہے اس کا پارٹ 2 آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے ایم سی کیوز کی طرف۔ سیکشن نمبر 1 کامرس، 28 ایم سی کیوز ہم نے اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے وہ ڈسکرپشن میں اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ آج اس کا پارٹ 2 ہے، یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 29 ہے USMCA، اس کا مطلب کیا ہوا گیا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیکو کینیڈا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہیز ریپلیسڈ۔ یہ انٹرنیشنل اکنامکس یا انٹرنیشنل بزنس کا سبجیکٹ ہے، جس میں نیفٹا آج کل اس کا نیا نام جو ہے یہ نیفٹا کے نام سے مشہور ہے، اس کا پرانا نام جو تھا یہ USMCA تھا۔ نیفٹا اس پوری انٹرنیشنل بزنس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے کہ جتنے بھی، جیسے کہ یورپین یونین ہے اس میں 27 کنٹریز ہے، ان کا آپس میں ایک ڈیل ہوتا ہے، وہ جتنے بھی بزنس کرتے ہیں تو ٹیرفز اینڈ بیریئرز کی کوئی پابندی نہیں ہوتی اور سارے ایک دوسرے کے لیے فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ تو یہ نیفٹا اس کے اوپر ایک، جس طرح IMF ہے، ورلڈ ٹریڈ ہے، تو نیفٹا بھی اسی طرح ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل بزنس کے لیے یا انٹرنیشنل اکنامکس کے لیے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے نیفٹا۔ نیکسٹ کویسچن ہے A company sent a job offer letter to a candidate on 2 مئی 2020. The candidate received the letter on 4 مئی 2020. The communication of offer is completed on. تو یہ 4 مئی 2020 ہے، کیونکہ 2 مئی کو انہوں نے جاب آفر لیٹر بھیجا کینڈیڈیٹ کو، لیکن دا کینڈیڈیٹ جو ہے اس نے اس لیٹر کو کون سی ڈیٹ پر حاصل کیا؟ 4 مئی 2000۔ تو یہ کمیونیکیشن جو ہے نا اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ 4 مئی 2020 ہو گیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے A company sent a job offer letter to a candidate. The candidate sent the acceptance letter on 2 مئی 2020 and the company received the letter on 4 مئی 2020. The communication of acceptance is completed on. اب ایک جو ہے نا کمیونیکیشن ریسیوڈ ہوتا ہے اور ایک سینڈنگ ہوتا ہے، تو یہاں پر دا کینڈیڈیٹ سینڈ دا ایکسیپٹنس لیٹر، اس نے جو ایکسیپٹنس لیٹر جو تھا وہ 2 مئی 2020 کو بھیجا، اور پھر کمپنی نے اسی لیٹر کو 4 مئی 2020، تو سینڈنگ جو ہے نا یہاں پر سینڈنگ کی طرف سے بات ہوتی ہے۔ ایک کمیونیکیشن ہے دونوں کے درمیان، ایک سینڈنگ ہے اور ایک ریسیونگ ہے۔ 4 مئی 2020 کو ریسیونگ ہو گیا اور سینڈنگ جو ہے وہ 2 مئی 2020 کو، تو کریکٹ آپشن ہے 2 مئی 2020۔ نیکسٹ کویسچن ہے انٹرنیشنل ٹریڈ فگرز ان ملین ڈالرز آف اے کنٹری آر گیون بلو۔ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ فگر ان ملین ڈالر جو ہے نا آپ اے کمپنی
किस चीज़ में होती है, ये आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट 100, वैल्यू ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड 120, और स्पेंडिंग बाय सिटीजन ऑन फॉरेन ट्रेवल ये 30 है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन विजिटर ये 10 है। तो व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन $1,000,000 फॉर दिस, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यहाँ पर हो रहे, एक्सपोर्ट जो है वो 100 है, इम्पोर्ट जो है ना वो 120 है। और सेंडिंग बाय सिटीजन ऑन फॉरेन ट्रेवल ये 30 है, और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन विजिटर ये सर्विसेज ये भी आपके इंटरनेशनल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का हिस्सा होते हैं। तो व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना हो गया, तो ये -$40 मिलियन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी प्रोड्यूस यूजिंग डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर डिवीजन के लिए कौन सा हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो ये सीलिंग फैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज़ नॉट अवेलेबल टू अ सोल प्रोप्राइटर एंड अ पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटर में एक चीज़ की कमी होती है, दैट इज़ शेयर इशू, उसमें ये चीज़ नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट पर जब सेल होती है तो उसका कौन सा एग्जाम्पल है, तो बाइंग अ कार विद अ डिपॉजिट एंड इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ आप ले रहे हैं तो ये इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट पर सेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस का कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है। वेयर हाउस में जो कुछ हो रहे हैं, तो वेयर हाउस में सिर्फ तो सामान जमा हो जाते हैं, उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। एट विच स्टेज द प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीटेड, कौन से स्टेज पे प्रोडक्शन कंप्लीट होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है व्हेन प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के हाथ में प्रोडक्ट आता है तो उस वक़्त प्रोडक्शन, ये पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन के ज़ुमरे में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्क इज़ नॉन इंश्योरेबल, तो कौन सा रिस्क जो है वो नॉन इंश्योरेबल है, तो ये पुअर मैनेजमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है पुअर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट्स आर डैश एंड इम्पोर्ट्स आर डैश। एक्सपोर्ट ये क्रेडिट की एग्जांपल है और इम्पोर्ट जो है ये डेबिट होता है। एक्सपोर्ट हमारे पास क्रेडिट होता है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट हो रही है हमारे, और अगर इम्पोर्ट हम करते हैं तो फिर हम डेबिट हमसे डिडक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू अ बायर व्हेन द बायर रिटर्न सम डिमांड्स ऑफ गुड्स। अगर डैमेज गुड्स ख़राब हो जाते हैं तो बायर कौन सा लेटर भेजेगा, तो ये क्रेडिट नोट है। कोई बायर कोई चीज़ आप बेचते हैं और वो फिर उसमें कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती तो फिर आपको कौन सा लेटर आएगा, ये क्रेडिट नोट आएगा। एन एसेट दैट पेज द रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपे द ओरिजिनल अमाउंट एट द मेच्योरिटी इज़ नोन एज। अगर एक ऐसा एसेट है जो पे करता है रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट और फिर रीपे करता है ओरिजिनल अमाउंट एट द मेच्योरिटी, तो वो चीज़ क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड पर आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसेट दैट पेज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश एट अ रेगुलर इंटरवल फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर इज़ नोन एज एन्युटी। ये जो इंस्टॉलमेंट होते हैं इंटरवल, एक ख़ास किस्म का इंस्टॉलमेंट जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी। एन एसेट, एक एसेट के ऊपर फिक्स अमाउंट में जो कोई रेगुलर इंटरवल ऑफ पेमेंट होती है सालों के हिसाब से, तो उसको एन्युटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज़ द प्रॉफिट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इफ डैश। उस कंपनी की इंश्योरेंस कितनी होगी अगर प्रीमियम रिसीव्ड 80,000 है, क्लेम बाय पॉलिसी होल्डर 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 है और एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट जो है ये 10,000 है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये सारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो के 50,000 रह जाता है। और इसका तरीका ये है कि 25,000 तो 80,000 जम 5,000 ये जमा हो गए और 50,000 उसमें सब्ट्रैक्ट हो गया और 10,000 भी उससे सब्ट्रैक्ट हुए, तो टोटल
25,000 आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ये इधर गलत उन्होंने लिखा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंकिंग सर्विस एनेबल कस्टमर टू मेक फिक्स पेमेंट एट अ रेगुलर इंटरवल? कौन सा बैंक इस तरह रेगुलर इंटरवल देता है? तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अ शेयर होल्डर इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन सेल हिज और हर शेयर्स बाय। एक शेयर होल्डर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जब बेचता है, क्या कर वो बेच सकता है अपने शेयर के साथ? वो क्या कर सकता है? ऑफरिंग दिन ऑन स्टॉक एक्सचेंज। शेयर होल्डर अगर है और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उसके शेयर्स हैं, तो वो अपने शेयर्स के साथ जो है ना उसके सेल और परचेज कहाँ पर कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आंसर सॉरी अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज, ये क्वेश्चन नंबर ये है 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, 46 नंबर क्वेश्चन ये, और ये यहाँ पर सिर्फ इसका ऑप्शन है। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। नंबर क्वेश्चन, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन ऑन बिहाफ ऑफ डैश। लेटर ऑफ क्रेडिट कब ओपन हो जाता है, किसके बिहाफ पे ओपन हो जाते हैं? तो अ बाइंग एजेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट उस वक्त जारी हो जाता है कि कोई बंदा जब बाइंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली, अच्छा, अ पर्सन आर a firm that brings buyers and seller together and receive a commission when the deal is done is called। दो बंदों के दरमियान जब एक बिजनेस को एज अ कैटलिस्ट एक रोल अदा करता है, एक सेलर है और बायर है, दोनों के दरमियान जब तीसरा बंदा काम करता है, सेलर को सेल पे कन्विंस करता है, बायर को बाइंग पे कन्विंस करता है और अपना कमीशन चार्ज करते हैं, उस बंदे को ब्रोकर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रोकर is a person or a firm that brings buyer and seller together and receive a commission when the deal is done, which of the following is not a function of retailer? ये भी यहाँ पर 48 जो है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर 48 यहाँ से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिटेलर? रिटेलर की कौन सी जॉब नहीं है? प्रोवाइडिंग अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। उसका एक रिटेलर का काम तो सिर्फ सेल करता है लोकल लेवल पे, तो वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के साथ उसको इसके दरमियान कोई लिंक प्रोड्यूस नहीं करता। अगर लिंक प्रोड्यूस होता है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के दरमियान, तो ये फर्म का काम है, रिटेलर का इसके साथ कोई काम नहीं। बाकी सारे काम रिटेलर कर सकता है, लेकिन ये काम उसका नहीं है कि वो बिटवीन मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के दरमियान एक लिंक पैदा करे। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और इसके बाद इंशाल्लाह हम ये कॉमर्स के वो इम्पोर्टेंट 48 क्वेश्चन थे जो हमने इकट्ठे किए, ये पेपरों में रिपीट हो चुके हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पेपरों में बार बार आता है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैविंग योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।